को है कि वो अपने ऑडियो को म्यूट में रखें और अगर उनको भाग लेना है तो हैंड्स रेज कर सकते हैं। जैसे जूम में आपके पास जो फीचर है उसको लेकर आप हैंड्स रेज कर सकते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट भी रहेगी जो टेक्निकल सपोर्ट है यहाँ पर उनको भी आप ध्यान रख सकते हैं कि जब अनम्यूट हो रहा है तो आप म्यूट कर सकते हैं। तो एक जनरल हम यहाँ पर एक तरीके का रूल रखें कि है ना म्यूट में रहें सभी, क्योंकि यहाँ पर करीब अभी 80 लोग हैं तो एक साथ आवाज़ काफ़ी बढ़ सकता है। तो ये जो नापो जल और बचाओ कल ये जो कैंपेन है इसमें आपको सबको पता है कि एक प्री मानसून यानी कि मानसून के पहले भी ये जो प्रोग्राम किया गया और उसमें जो डेटा है ना कि गांव की तरफ से जो जानकारी है, लोग इसमें मिलकर, समुदाय इसमें मिलकर जुड़कर इसमें भाग ले रहे हैं। यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आया हुआ है कि इंग्लिश में भी थोड़ा समरी करें, तो बिल्कुल हम करेंगे। वी विल ऑल्सो समराइज इन इंग्लिश ब्रीफली because here there is a mixed audience. What we'll try and do is to maintain Hindi and English, both languages. And at any point of time, if the voice is not clear, please type it in the message. And if our voice is broken, we'll try our best. With all the limitations of bandwidth and all these issues, we'll try our best to be as clear as possible. Thank you. तो हम लोग जो यहाँ पर इस वेबिनार के लिए आए हुए हैं, जो फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी FES की तरफ से ये जो कैंपेन है जिसमें अलग अलग संस्थाएं साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। मेनली FES के साथ इनरेम फाउंडेशन और एक्वाडाम, ये दो संस्थाएं जुड़कर सपोर्ट दे रहे हैं। और एक्वाडाम जो देश भर में एक काफ़ी मानी जानी संस्था है जो भूजल के ऊपर भागीदारी से कैसे समुदाय भूजल के ऊपर संरक्षण कर सकते हैं, इसके ऊपर एक्वाडाम ने काफ़ी बड़ा काम किया है। तो एक्वाडाम इसमें ये सपोर्ट दे रहा है, टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है, उनके पार्टनर्स में जुड़े हुए हैं। हमारी संस्था जो है इनरेम, वो पानी की गुणवत्ता यानी वाटर क्वालिटी के ऊपर काम करती है। तो वो हम इस नज़रिए से यहाँ पर सपोर्ट दे रहे हैं कि ये जो वेल मॉनिटरिंग, ये जो नापो जल का ये जो पूरा प्रोग्राम है, इसमें जल की गुणवत्ता, पानी की क्वालिटी को भी कैसे ला सकते हैं। So I will just briefly repeat in English about this entire campaign of water measurement leading to water conservation, where communities from across the country have been participating. My request again to mute and requesting the technical team here to try and mute the particular member here. Thank you. I think we have disturbance from one particular phone. So I request the technical team here to try and mute it. Thank you. Yeah. And then we can proceed ahead. Thank you very much. Okay, thanks a lot. And thanks a lot to everybody, and definitely requesting again to keep yourself on mute because the noise then adds up. सभी को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वॉइस को म्यूट में रखें। तो जस्ट रिपीटिंग ब्रीफली इन इंग्लिश, what we spoke in Hindi, we'll try and repeat in English little bit. So the idea of this campaign is to get information from the community back to the community, empower them with information on water, and help the community to manage water, manage groundwater in a much better way. And for this, data empowerment is essential, and FES has taken the lead to bring together many organizations in this empowerment process. As many of you might know, more than 18,000 data points were contributed in the last phase, and here we are to continue this campaign and
make it even bigger, across the country, and make it even bigger than even last time. And Chiranjit here will give a brief presentation to talk about the program itself and how we are planning this post-monsoon well water monitoring. So with this background, I pass it over to Chiranjit Guha from FES, who will share with us about this whole innovation, I would say, that they have brought about in terms of technologies and communities with this app of water monitoring tool. So Chiranjit, please take over from here. Thank you very much. Thank you, Sundar. Thank you very much, and good afternoon to all of you. ये webinar में जैसे Sundar was telling, we are trying to capture water level from across the country from different locations, and this is an initiative. Though Aquadam, Indian Foundation, and FES started it technically, but it is a collaborative approach, collaborative effort for all the organizations who are actually working at the village level, because technically we are taking or trying to help all of us to support for collecting data, analysis of the data. बट जो हम लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि डेटा जो आएगा वो एक्चुअली गांव से आएगा, और अगर हम लोग हाथ मिला के अगर ये नहीं करेंगे तो ये डेटा लाना मुश्किल है. सो दिस इज कम्प्लीटली a collaborative approach with all of you, all of the organizations who have already contributed data, और जो आगे हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सब एक साथ मिलके ये नापो जल और बचाओ काल का चीज करेंगे. सो मैं जस्ट आपको ये प्रेजेंटेशंस के सहायता से 3 चीज बताने का कोशिश करूंगा. एक है कि आप जो हम लोग प्री मॉनसून में किए थे, वो प्री मॉनसून में हम लोग किस तरीके से हम लोग उस डेटा को एनालिसिस किए, उससे क्या निकाल के आया, वो जो हम 2-3 मिनट में बताने का कोशिश करेंगे. और उसके बाद हम लोग मैं दिखाऊंगा इस टूल में क्या नया बदलाव लाया गया है, क्योंकि एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जिसके सहायता से आप आसान से डेटा कलेक्ट कर सकते हो फिर से. और तीसरा है उसका एक वीडियो मैं दिखाऊंगा. उस वीडियो 5-7 मिनट का एक वीडियो है जिससे आपको और क्लैरिटी के साथ ये चीज पता चलेगा. सो दिस इज today's session for next 1 hour, and then we will have a question hour session for last 15 minutes. and आपसे सबसे निवेदन ये रहेगा कि आप आपके जो क्वेश्चंस है वो आप चैट बॉक्स में डालिए, सो दैट हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को ले पाएंगे. मैं पहले आपको बता दूं, पहला वाला हिस्सा है इस प्रेजेंटेशन का, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन इज दैट I don't want to mention the name one by one, but I just wanted to put here that जो कोशिश हम लोगों ने प्री मॉनसून में किए थे, करीब 40 संस्था मिलके, मुझे बस 1 सेकंड का टाइम दीजिए, एक टेक्निकल इशू आया है, मैं एक बार सेट करके मैं फिर शुरू करता हूँ. वो क्या कहते हैं YouTube पे होगा उसका भी ऑप्शंस ठीक है. मैं आपको बताऊं, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन. क्या आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो? हाँ बिल्कुल चिरंजीत. हाँ दिख रहा है. थैंक यू. एक टेक्निकल फॉल्ट के कारण ये हो रहा था. सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन. जो मैं बता रहा था आपको कि देयर आर nearly 40 organizations came together
इन ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, जब ये कोविड के कारण लॉकडाउन हुआ था, उसी टाइम में हम लोगों ने ये कोशिश किए थे कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग डेटा को कलेक्ट कर पाए, वाटर टेबल का डेटा, जिससे हम लोग को ये सहायता मिलेगा कि मोर कोर्स एक एनालिसिस, एक वाटर टेबल सिचुएशंस को हम लोग पता कर पाए। इसी के लिए हम लोगों ने जब ये कैंपेन चालू किए थे प्री मानसून में, इसको हम लोगों ने ट्राई किए थे कि एक पायलट के साथ चालू करने के लिए, कि हमें समझ में आए कि किस तरीके से ये चीज करना है, किस तरीके से हमें आगे जाना है। सो उसमें हम लोग 40 संस्था, जो यहाँ पर नाम आपको दिख रहा है, साथ मिलके अलग अलग जगह से, देश के अलग अलग हिस्सों से डेटा को लेके आ पाए। सो मैं जस्ट आपको क्विकली दिखाऊंगा कि जैसे 40 संस्था यहाँ पर करीब करीब 17,200 वेल का डेटा 15 दिन के अंदर हम लोग ने नाप पाए थे, जबकि वहां पर उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था। बट फिर भी लोगों ने कोशिश करके अपना अपना गांव से कुएं में गए, डेटा कलेक्ट किए और वो डेटा को अपलोड कर पाए। उस डेटा एक बार आने के बाद फिर हम लोगों ने, जैसे आप ये वाला मैप में देख पाओगे, जो लेफ्ट साइड में मैप है, कहाँ से ये डेटा आया है। करीब करीब 12 स्टेट का 330 ब्लॉक से ये डेटा को इकट्ठे कर लिया गया है। और इसी डेटा को जब हम लोग एनालिसिस पे आए तो हम लोग 330 ब्लॉक का इस 3 मैप को बना पाए। जो ऊपर वाला मैप आपको बताता है कि आपका ये ब्लॉक में कौन कौन सा गांव ऐसा है जहां रिचार्ज ऑफ द ग्राउंड वाटर आसान से होता है, और कौन सा ऐसा गांव है, कौन सा गांव के अंदर कौन सा जगह ऐसा है जहां पर रिचार्ज, मतलब वहां पर अगर आप कोई वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हो, सो दैट विल नॉट एक्चुअली सपोर्ट रिचार्ज। सो इस तरीके से हम लोग ग्रीन टू रेड कलर में ये मैप को बनाए। साथ में हम लोग दूसरा जो ब्लू कलर का मैप आपको यहाँ पर दिख रहा है, इससे हम लोग को ये पता चला ग्राउंड वाटर फ्लो, मतलब किस दिशा से किस दिशा के तरफ, विच डायरेक्शन द ग्राउंड वाटर एक्चुअली फ्लोज। क्योंकि ग्राउंड वाटर का फ्लो जमीन के ऊपर से पता करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो दिखती नहीं है, बट वो हमारे मन के बाहर नहीं जाना चाहिए। इसलिए हम लोग ये वाटर टेबल का डेटा को कलेक्ट करके हम लोग इस तरीके का मैप बना सकते हैं, जहां से हमें पता चलेगा कि जैसे डार्क कलर, डार्क ब्लू से लाइट ब्लू की तरफ पानी चल रहा है, तो आपको ये पता चलेगा आपके ब्लॉक में पानी का फ्लो किस तरीके से जा रहा है, जो रीजनल फ्लो है। और तीसरी वाला जो मैप हम लोगों ने प्रोवाइड करा है वो है कि जमीन के कितने नीचे पानी का स्तर अवेलेबल है। सो अगर वेल डिपेंडिंग का काम करना है या नया वेल खोदना है, तो ये मैप आपको मदद करेगा आपके गांव की उस लोकेशन में ग्राउंड वाटर का डेप्थ पता करने के लिए। तो इससे जो आउटकम्स आया है कि हम लोग इसको लोकल जो वेरिएशंस होता है वाटर लेवल को कैप्चर कर पाए, हायर ग्रैनुलर डेटा आया, जिससे हम लोग रिचार्ज डिस्चार्ज जोन को बना पाए, ग्राउंड वाटर फ्लो पथ बना पाए, और साथ में हम लोग जो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिलेटेड जो रिकमेंडेशंस टाइप का डिसीजन सपोर्ट टूल होता है, शायद आप लोग कुछ लोग जानते होंगे, क्लाड बोल के एक टूल है जो आपको गांव में ये बताता है जहां पर खड़े हो वो जगह पे किस तरीके का रिकमेंडेशंस है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के। तो ये आउटकम्स इस मैप से हम लोग बना पाए थे। मैं आपको छोटे से दिखाऊंगा ये इसका जरूरत क्यों है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे हमारे देश में आज की बात करेंगे तो 2007 से 17 का जो डेटा ग्राउंड वाटर बोर्ड ने पब्लिकली अवेलेबल करा के रखे है, ये राजस्थान में मैं आपको दिखा रहा हूँ। करीब करीब 1050 वेल है जो पूरा राजस्थान स्टेट को कवर करता है। इसका मतलब है एक वेल करीब करीब 350 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर कर पा रहा है। बट जो एक वेल का 350 स्क्वायर किलोमीटर कवरेज के मतलब उससे हम लोग ज्यादा कुछ बाकी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप। तो एक वेल से 350 स्क्वायर किलोमीटर जब हम लोग रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं किसी वेल का, इससे ये पता बहुत अच्छे तरीके से पता नहीं चलता है ग्राउंड वाटर का फ्लो कैसा है और ग्राउंड वाटर का सिचुएशंस कैसा है। इसी जगह पे जब हम लोगों ने कुछ संस्था एक साथ मिलके काम किए तो देखिए इतना डेंस पे, इतना डिस्ट्रिक्ट पे हम लोगों ने डेटा कलेक्ट कर पाए, जो जबकि हम लोग पूरा स्टेट कवर नहीं कर पाए क्योंकि ये पायलट था एक लेवल पे और उस टाइम लॉकडाउन भी चल रहा था। बट फिर भी हम लोगों ने वी ऑल केम टुगेदर एंड जॉइंड हैंड, and by that way we collected nearly 6,000 wells from 12 districts of the state। और इसी को मैं थोड़ा एनालिटिकल फॉर्म में आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जैसे एरिया है जहां पर 5 स्क्वायर किलोमीटर पर वेल रिप्रेजेंटेशन हुआ है ऑन एन ओवरऑल करीब करीब 60 स्क्वायर किलोमीटर पर वेल का रिप्रेजेंटेशन इतना डिस्ट्रिक्ट में हो पाए। और इसी को जब हम लोग मैप में डाल के दिखते हैं तो आप देख सकते हो पूरा भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो लाल डॉट दिख रहा है ये ग्राउंड वाटर बोर्ड का पॉइंट्स है, और ये डेटा जो है ग्रीन और ब्लू पे ये वेल मॉनिटरिंग डेटा है जो इस टूल के सहायता से हम लोगों ने प्री मॉनसून टाइम में
मतलब 15 मई से 10 जून तक इस टाइम पीरियड में हम लोग ले पाए थे। और इतना डेंस डेटा आने के कारण अब अगर हम लोग एनालिसिस करें इस चीज को थोड़ा सा, देखिए ये जो फ्रेम आपको दिख रहा है, ये ग्राउंड वाटर बोर्ड का डेटा का हिसाब से है, जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड गवर्नमेंट का डेटा है। ये ऊपर वाला जो फ्रेम है ये एलिवेशन है, और नीचे वाला जो आपका पानी का स्तर दिख रहा है। तो उस हिसाब से अगर ये अलग अलग ब्लॉक का हम बात करेंगे तो ये ग्राउंड वाटर सिचुएशन है जो एक रीजनल पिक्चर को सामने लाता है। वी कैन इजिली आइडेंटिफाई द groundwater flow regionally by the data that have been provided by the central groundwater board, but उसको locally गांव के अंदर क्या वेरिएशंस है वो पता करना बहुत मुश्किल है। इवन विद इन द ब्लॉक व्हाट इज हैपनिंग इज वेरी डिफिकल्ट। तो उसी को एड्रेस करने के लिए ये जब डेटा हम लोग लिए है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे ये आप देख पा रहे हो कि रिचार्ज पोटेंशियल मैप एक कोशिश किया गया बनाने के लिए ऑन द बेस ऑफ द ग्राउंड वाटर बोर्ड डेटा। और जब हम लोग हमारा ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग टूल से जो क्राउड सोर्सिंग कोलैबोरेटिव अप्रोच में जो डेटा लिए, उससे इस तरीके का डायमेंशनली 3 डायमेंशनल मैप आप बना सकते हो, जिससे आपको ब्लॉक वाइज पता चल रहा है कि कैसे ग्राउंड वाटर का फ्लो हो रहा है, किस तरीके से ग्राउंड वाटर का सिचुएशंस ऑकरेंस हो रहा है। तो इस तरीके का डिटेल एक पिक्चर सामने आ रहा है, जिससे हर एक ब्लॉक का हर एक गांव का हमें डिटेल में पता चल रहा है कि उस गांव का पानी का स्तर कैसा है। तो आप एग्जाम्पल पे देख रहे हो ऊपर वाला जो मैप है ये आपको बता रहा है कि जो ग्राउंड वाटर बोर्ड का डेटा और उसका जो ग्राउंड वाटर कंटूर वो यूनिफॉर्म ट्रेंड दिखा रहा है। जबकि हम लोग जब वाटर मॉनिटरिंग टूल यूज करके ज्यादा से ज्यादा डेटा को लेके आ पा रहे हैं, उस टाइम में देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड एक डायग्राम बन रहा है, जिससे आपको पता चलेगा कि एक गांव के अंदर में भी कितना वेरिएशंस हो रहा है या ब्लॉक के अंदर कैसे वेरिएशंस हो रहा है वाटर टेबल सिचुएशन का। और उसको थोड़ा सा हम जूम करके एक ब्लॉक पे आपको दिखा रहा है। जैसे ये मंडलगढ़ ब्लॉक है राजस्थान भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का। देखिए ये वाटर टेबल का जो सिचुएशन है मिट्टी के नीचे कहीं ऊपर में है कहीं नीचे है। सो आपको ये पता चलेगा किस तरीके कहाँ पर पानी का स्तर ऊपर है कहाँ पानी का स्तर नीचे है किस किस गांव में। और उस हिसाब से हम लोग रिचार्ज पोटेंशियल मैप भी बना सकते हैं इसके सहायता से कि कौन कौन सा गाँव में अगर हम लोग पानी बचाने का काम करेंगे तो वहां पर रिचार्ज अच्छा होगा, और कहाँ पर हमें इस तरीके का गाँव चुनना चाहिए जहां पर हम कुछ पानी बचाने का काम करेंगे तो ज्यादातर सरफेस वाटर में वो स्टोरेज होगा। तो इस तरीके का मैप बहुत आसान तरीके से इस डेटा से बन जाता है। और इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके का चीज फिर हम लोग पोस्ट मानसून में कंटिन्यू करें, क्योंकि हर साल में 2 बार डेटा लेना बहुत जरूरी है। जैसे आप ग्राउंड वाटर बोर्ड का बात करोगे तो ये लोग 4 बार लेते ही है, बट 4 बार के जगह पे एटलीस्ट प्री और पोस्ट मानसून में भी अगर डेटा कलेक्ट कर किया जाए, क्योंकि पूरा देश भर के बात करेंगे तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के पास प्लस 15,000 वेल्स ही है जो वो पूरा साल में मॉनिटर करते हैं। लेकिन वो डेटा सफिशिएंट नहीं है। जब तक हम लोग सब मिलके ये डेटा कलेक्ट नहीं करेंगे और इसको सही ढंग से अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि ग्राउंड वाटर का सिचुएशन हमारे देश में कैसा है। इवन वी डू नॉट हैव ए प्रॉपर एक्वीफर मैप ऑफ द कंट्री। सो दिस वुड बी वन ऑफ द not the solutions but at least something we will get from where we can easily get to know कि आपका गांव का पानी का स्थिति कैसा है और कितना किस तरीके का काम करना चाहिए, जिससे हम लोग थोड़ा पानी बचा के आगे के दिन पे थोड़ा सा बदलाव ला सकते हैं पानी के ऊपर। सो जो प्लान है पोस्ट मानसून का, दैट वी विल कलेक्ट ऑल द वेल्स जो हम लोग प्री मानसून में मॉनिटर किए थे, क्योंकि डेटा कंसिस्टेंसी रहेगा उसमें। उसके साथ में भी हम लोग कवरेज बढ़ाने का कोशिश करेंगे आप सबके साथ मिलके, कि जो हम लोग 330 ब्लॉक में कर पाए अगर 17,000 वेल को अगर हम लोग ये कायदे से हर एक गांव से हर एक वेल भी मेजर करेंगे तो 6.5 लाख वेल का मेजर करना होना चाहिए, क्योंकि देश में करीब 6.5 लाख विलेजेस है। तो मैं उतना भी नहीं, अगर हम लोग धीरे धीरे उसकी तरफ पहुंचे, अगर इस साल इस प्रोस्पॉन्स में हम लोग 1 लाख वेल भी पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा कवरेज हम लोग कर पाए, तो उससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है। और इस डेटा से फिर हम लोगों को ये नीचे जो 5 पॉइंट लिखा हुआ है ये फायदा मिलेगा। जैसे वाटर लेवल फ्लक्चुएशन का डेटा हमें आसान से मिल जाएगी, क्योंकि प्री मानसून का डेटा है, पोस्ट मानसून का डेटा आएगी तो हमें पता चलेगा कि बारिश के साथ साथ किस तरीके से रिचार्ज हो रहा है और किस तरीके से रिचार्ज एंड रेनफॉल का जो कोरिलेशन है वो बैठ पा रहा है। साथ में ये डेटा को हम लोग एक्यूरेसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, अलग अलग टूल में इस्तेमाल करने के लिए। जैसे वाटर बजटिंग का हम बात करते हैं गांव लेवल पे, तो वाटर बजटिंग एक्सरसाइज में भी इस तरीके का डेटा बहुत ही यूजफुल होता है।
और साथ में हम लोग इस बार एक नया फीचर इसमें लाए हैं जो पायलट स्टेज में है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा इसको करने के लिए, जो सुंदर भाई बता रहे थे, दैट इज वाटर क्वालिटी असेसमेंट, जो वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑल्सो ग्राउंड वाटर के लिए होता है, कि उसमें फ्लोराइड कितना है, आर्सेनिक कितना है, उसमें आयरन कितना है, उसका टीडीएस कैसा है। क्योंकि आप जानते हो हम लोग घर पे सब कोई जनरली आरओ का पानी पी रहा है शहर में, बट गांव का पानी का स्थिति हमें जानना बहुत जरूरी है, और क्योंकि इसके साथ इंसान का हेल्थ बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेडली जुड़ा हुआ है, तो इसलिए वाटर क्वालिटी असेसमेंट भी इस टूल के सहायता से आप कर सकते हो। और इसमें पहले मैं आपको बता दूं कुछ प्रोटोकॉल्स होता है इस टूल के यूज करने के लिए। जैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर गांव से कम 1 या 3 वेल को मॉनिटर कर लिया जाए, और ऐसे वेल को चुना जाए जिसको हम लोग साल में 2 बार मेजर कर पाए। अगर कुएं में पानी नहीं है, क्योंकि प्री मानसून टाइम में पानी बहुत टाइम सूख जाता है, तो कभी कभी पोस्ट मानसून में भी कुछ कुछ वेल्स में पानी नहीं आता है, तो हमें उसको भी मेजर करना है 1-2 वेल ऐसे गांव से जिसमें पानी नहीं है। अगर नहीं है तो भी आप मेजर कर सकते हो, पानी का लेवल नहीं मेजर करना है, उस टाइम में आपको कुएं का गहराई मापना है, तो आपको पता चलेगा कितना लेवल तक पानी का अवेलेबिलिटी है ही नहीं। साथ में इसको जो जीपीएस इंस्ट्रूमेंट यूज करना है वो मोबाइल से भी आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको मोबाइल को मिट्टी के ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि अल्टीट्यूड जो ऊंचाई, समुद्र तल से जो ऊंचाई का कहानी है जो हम मोबाइल से कैप्चर करते हैं, वो बहुत जरूरी है ग्राउंड वाटर का डेटा को एनालिसिस करने के लिए। हमें ये बहुत इंपॉर्टेंटली दिमाग पे रखना पड़ेगा कि हम जो भी मेजरमेंट लेंगे वो मीटर में ही लेंगे, फीट पे नहीं, क्योंकि फीट और मीटर में बहुत अंतर होता है। 1 मीटर मतलब 3 फीट के आसपास होता है, तो अगर गलती से हम लोग मीटर की जगह पे फीट लिख देंगे तो वो डेटा गलत हो सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि कोशिश ने मतलब ये करनी है कि ये डेटा जो है ये मीटर में ही लेना है। अगर जो वेल पे हम लोग मेजर करने जा रहे हैं उसमें अगर मोटर लगा हुआ है, इंजन पंप लगा हुआ है, वी हैव टू बी श्योर दैट लास्ट 24 आवर्स, लास्ट 24 घंटे में हम लोग उस कुएं से पानी का दोहन नहीं किया है। वी डिड नॉट यूज द पंप फॉर लास्ट 24 आवर्स। और हम लोग कोशिश करेंगे ज्यादातर ओपन वेल का मतलब खुला कुआं को मेजर करने के लिए, क्योंकि बोरवेल मेजरमेंट्स के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का जरूरत होता है जो वाटर लेवल इंडिकेटर कहा जाता है। अगर वो नहीं है तो बेटर है कि आप ओपन वेल का ही ज्यादा से ज्यादा मॉनिटर कर लिया जाए। और आपको मैं यहाँ बता दूं कि ये एक ही टाइम में पूरा देश में होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग आप सबसे निवेदन ये करते हैं कि अगर आप लोग ये प्रोटोकॉल फॉलो करके डेटा ले रहे हो तो 12 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच में ही डेटा लीजिए, क्योंकि पोस्ट मानसून इस साल का आईएमडी का जो प्रेडिक्शंस था उस हिसाब से सितंबर एंड मतलब 1-2 अक्टूबर तक ये बारिश खत्म मतलब मानसून का जाने का तैयारी है। तो इस हिसाब से 12 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच का जो टाइम है ये आइडियल टाइम है जब आप पोस्ट मानसून का डेटा कलेक्ट कर पाओगे। और किसी एरिया में अभी भी अगर बाई चांस बारिश हो रहा है तो आप थोड़ा सा 5 दिन वेट कर सकते हो, बारिश बंद होने का 5 दिन बाद आप डेटा को लीजिए। सो ये प्रोसीड्यूर ऑफ वेल मेजरमेंट है। आपको गांव कुआं के पास जाना है, मोबाइल को जमीन के ऊपर रखना है, और आपको जमीन के ऊपर से कितना नीचे पानी है इतना ही नापना है। और इसमें अगर पैरापेट वेल जो यहाँ पर आपको दिख रहा है इस वॉल से माप रहे हो तो इस मेजरमेंट से आपको ये ऊंचाई जो पैरापेट वेल का ऊंचाई इसको निकल के उसका डेटा डालना है। जैसे यहाँ से अगर 10 मीटर नीचे पानी है और ये 1 मीटर हाइट का है तो आपको 9 मीटर यहाँ पर लिखना है जो पानी का डेप्थ है। तो मैं आपको थोड़ा सा आपकी टूल के बारे में बता दूं बहुत जल्दी से कि ये जो वाटर मॉनिटरिंग टूल है ये एंड्रॉइड एप्लीकेशंस के सहायता से बना हुआ है जो ऑफलाइन मोड पे काम करता है फील्ड में। ये टूल आप इस यूआरएल को डालोगे https://wmt.indiaobservatory.org.in। ये आपका मोबाइल पे आप टाइप करते ही ये पेज आपके सामने खुल जाएगी, जहां पर ये जो बटन है WMT वर्जन 2 इसको क्लिक करते हुए ही आपका मोबाइल पे ये टूल डाउनलोड हो जाएगा। उसको आप क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉलेशन के टाइम में आपको इंटरनेट चाहिए होगा, उसके बाद 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है, क्योंकि हमें ये पता चले कि कौन सा संस्था ये डेटा दे रहा है, सो दैट अगर उनको एक्नॉलेज करना है, उनके साथ काम करना है तो हमें ये बहुत आसान होगा। इसमें आपको पहले आपको नाम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर ये डालना है। उसके बाद आप स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हो। ये ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करते ही आपके डिस्ट्रिक्ट में जितना भी एनजीओ और सीबीओ है इनका नाम आपको दिख जाएगा, क्योंकि ये 90,000 जो एनजीओ दर्पण पोर्टल में है वहां से लिया गया है डिस्ट्रिक्ट वाइज।
फिर भी अगर आपका नाम यहाँ नहीं दिख रहा है किसी भी हाल पे, तो आप अदर क्लिक करके आपके संस्था का नाम डाल सकते हो। और ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद आपको इंटरनेट का जरूरत नहीं पड़ेगा जब आप डेटा कलेक्ट करोगे। उसके बाद आप जब फील्ड में जाओगे तो देखिए ये टूल को खोलने के बाद ऊपर में एक क्लास बटन दिखेगा। सबसे पहले तो ओपन करने के बाद आपके सामने गूगल का मैप आ जाएगा और जीपीएस ऑन होते हुए ही आपका लोकेशन गूगल मैप के ऊपर दिखेगा आपको। उसमें अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करोगे तो आपको ये भी एक सुविधा उपलब्ध कराया गया है जहां से आपको पता चलेगा आप जहां पर खड़े हो वो गवर्नमेंट का हिसाब से वो ओवर एक्सप्लॉइटेड जोन है, क्रिटिकल जोन है, या सेफ जोन है, या सलाइन जोन है। तो आपको ये इंफॉर्मेशन पहले ही पता हो जाएगा। उसके बाद आप आपका लोकेशन में जाने के बाद डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें दो तरीके का डेटा कलेक्ट होता है। पहला है कि अगर आपने उसी कुएं में जा रहे हो जहां पर जिस गांव में जा रहे हो वहां पर एग्जिस्टिंग वेल ऑलरेडी होगा जहां पर प्री मानसून में डेटा को लिया गया है। उसी डेटा को लेने के लिए आप सबसे नीचे वाला जो बटन है इसको क्लिक करोगे तो आपको ये स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज का नाम पूछेगा। ये विलेज का नाम डालते हुए उसी गांव में जो जो वेल को ऑलरेडी मॉनिटर किया गया है वो वेल का लोकेशन दिखेगी। उसी किसी एक भी वेल के ऊपर आप क्लिक करते हुए उसका डिटेल मिल जाएगा आपको, जैसे वो किसका कुआ है, ओपन वेल है या बोर वेल है, कौन सा हैबिटेशन में है, ये आपको मिल जाएगा। और उसमें जाके अगर आपको उसी वेल का डेटा लेना है तो इसको क्लिक करते हुए फॉर्म खुल जाएगी ऑटोमेटिकली, जहां पर ये स्क्रीन कैप्चर हो जाएगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ। और अगर आपने एक्चुअल डेटा ले रहे हो तो एक्चुअल को क्लिक कीजिए, क्योंकि टेस्टिंग और ट्रेनिंग सब टेस्टिंग और ट्रेनिंग पर्पस के लिए ही है। फील्ड से जब डेटा लेना है तो एक्चुअल में क्लिक करना है। आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा। उसके बाद ये आप फॉर्म को सेव कर सकते हो। और अगर आप नया किसी लोकेशन में जा रहे हो जहां पर नया कुआ है तो डेटा लेना है तो आपको ये थर्ड बटन को क्लिक करना है। मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा इसके बाद, जिस वीडियो में ये पूरा ट्रेनिंग बना हुआ है, जिसको सहायता से ये हिंदी में बना हुआ है। कोई भी इंसान जो इसको देखते हुए समझ जाएगा इसको डाउनलोड कैसे करना है, और जो मैं बता रहा हूँ स्टेप्स उसमें क्लियरली बना हुआ है। फिर भी मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि नया कुएं को लेने के लिए ये थर्ड बटन को क्लिक करते हुए आपको पूछेगा नया डेटा लेना है कि नहीं। हाँ बोलते ही वो स्क्रीन आपका कैप्चर हो जाएगा यहाँ पर, और उसमें आपको डेटा भरना है ड्रॉप डाउन से स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एटसेट्रा। तो उसमें बेसिकली 9 क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन कैप्चर लोकेशन, जो ऑटोमेटिकली होता है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज का नाम आप ड्रॉप डाउन से आपको मिल जाएगी। हैबिटेशंस का नाम, मतलब जिस मोहल्ले में आप रहते हो उस मोहल्ले का नाम आप लिख सकते हो। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, आप इसको छोड़ भी सकते हो। कुएं को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हैबिटेशंस का नाम पता रहे। साथ में आपको ये क्वेश्चन आएगा जो वेल का ओनर है, कुआ किसका है उसका नाम लिख सकते हो। अगर सार्वजनिक कुआ है, इफ इट इज अ कम्युनिटी वेल, यू कैन एक्चुअली प्रोवाइड द नाम ऑफ द वेल व्हिच इट इज नोन फॉर। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये ओपन वेल है या बोर वेल है, वो ड्रॉप डाउन में अवेलेबल है, उसमें पानी है या नहीं है, वो भी क्वेश्चन है। अगर यस करोगे तो आपको डेप्थ टू वाटर, मतलब जमीन से कितना नीचे पानी है उतना माप के आपको लिखना है, और नो है तो कुएं का गहराई आपको नाप के लिखना है। उसके बाद एक फोटो आप ले सकते हो। उसके बाद और एक ऑप्शन है वाटर क्वालिटी, इसको क्लिक करते हुए ड्रॉप डाउन में अवेलेबल है कि अगर फ्लोराइड, आर्सेनिक, आयरन, टीडीएस, पीएच ऐसे 5-6 पैरामीटर वहां पर डाला हुआ है। अगर आप वाटर क्वालिटी का मेजरमेंट ले रहे हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और नहीं कर रहे हो तो आप इसको ऑप्शनली छोड़ भी सकते हो। बट आपसे निवेदन है अगर आपके पास ये फैसिलिटी उपलब्ध है तो प्लीज आप लोग वाटर क्वालिटी का डेटा भी साथ में ले लीजिए। इसके बाद जब आप ये फॉर्म भर लेते हो उसको सबमिट कर दो। सबमिट करने में ये फॉर्म आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी। तो आपको इंटरनेट नहीं चाहिए इसको सेव करने के लिए। सेव करके आप 1 से 50 वेल, 1000 वेल ले रहे हो तो सेव करके आ जाइए। हर एक कुएं का ये फॉर्म यहाँ पर आपको दिखेगा। जब आप इंटरनेट जोन पे आते हो, जैसे आप ऑफिस आ गए या घर पे आ गए जहां पर आपके मोबाइल पे इंटरनेट उपलब्ध है, वहां से आप हर एक फॉर्म को यहाँ क्लिक कर दीजिए जो फॉर्म आपने डेटा कलेक्ट किए हो। ये फोर्थ बटन, सेव बटन दिखाने में आपको ये फॉर्म पूरा लिस्ट दिखेगा। जिस जिस फॉर्म को आपको अपलोड करना है उसको सिलेक्ट करके आप अपलोड कर दीजिए, तो वो फॉर्म तुरंत आपके मोबाइल से निकल जाएगा। और उसको बाद में आप देखना चाहोगे तो व्यू करके उस फॉर्म को देख सकते हो। और उसी के बाद वो फॉर्म जब आप सिंक्रोनाइज कर देते हो, व्हेन यू सिंक्रोनाइज इट विद द पोर्टल, देन वो एवरी वेल विल बी डिस्प्लेड इन दिस मैप। तो आप हर एक आपका लोकेशंस का वेल्स का जो डेटा है हम यहाँ से दिख पाओगे। आपको ये वेल पे क्लिक करते हुए उसका डिटेल यहाँ आ जाएगी,
और इस पोर्टल का एड्रेस से भी आप घुस के उस डेटा को देख पाओगे, डेटा डाउनलोड भी कर पाओगे। और उसी के साथ ये जो ऑप्शन है पीडीएफ में वो फॉर्म को डाउनलोड करना, आप विलेज सिलेक्ट भी कर सकते। एक विलेज का सिलेक्ट कर लो तो उतना विलेजेस, उस विलेज में जितना वेल है आपको दिख जाएगी, उसको भी आप डाउनलोड करके देख सकते हो। और आपको जानकारी के लिए मैं बताऊंगा कि जो डेटा प्लेटफॉर्म इंडिया ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम में अवेलेबल है एफएस का, जहां पर करीब करीब 1800 ऐसा लेयर्स है जो इंडिया का सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल डेटा को रिप्रेजेंट करता है। करीब करीब 1800 डेटा लेयर है 40 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, 40 अलग अलग सोर्सेस से। उसी डेटा को यूज करके आप इस डेटा का कोरिलेशन कर सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर मैंने डाल के रखा हूँ जो प्री मॉनसून वाटर टेबल डेटा था 2017 में, जहां पर ये ब्लू कलर में दिख रहा है, ये बहुत डेप्थ में था, लाइट ब्लू इज नियर टू सरफेस। तो उसी जगह में अब वेल का भी कोरिलेशन कर सकते हैं, इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो। तो आपसे ये निवेदन रहेगा कि आप ये वाला वेबसाइट पे जाके भी 1800 लेयर के साथ भी ये डेटा को आप देख पाओगे। सो प्री मॉनसून पोस्ट मॉनसून दोनों डेटा आपके पास उपलब्ध हो जाए। अभी का दिन पे प्री मॉनसून का डेटा उपलब्ध है इसमें, बस पोस्ट मॉनसून का डेटा जब आ जाता है तो हम लोग उसको भी इसमें अवेलेबल करवा देंगे। सो मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन बंद कर रहा हूँ मेरा। इसमें बेसिकली ये टूल इसी वेबसाइट में अवेलेबल है, जहां पर अगर आप indiaobservatory.org.in/tool/gmt टाइप करोगे तो आप टूल के बारे में डिटेल आपको मिल जाएगा। टूल भी यहाँ से मिल जाएगी आपको। और आपको अगर कोई भी जानकारी और चाहिए तो आप इसमें support@indiaobservatory.org.in पे हमें बिल्कुल कांटेक्ट कीजिए, या आप लोग हमें मेल भी कर सकते हो। अभी इसी प्रेजेंटेशन के बाद मैं बस 6 मिनट के लिए एक मूवी चलाऊंगा जो मैं बता रहा था, जो मैं कोशिश करेंगे इसको व्हाट्सएप के सहायता से और बाकी सोशल मीडिया के सहायता से, यूट्यूब से, फेसबुक से आपके तरफ पहुंचाया जाए, जो आप गांव लेवल पे जो सीआरपीज या गांव के जो लोग डेटा कलेक्ट करेंगे उनके पास पहुंचा पाओगे, सो दैट they can take the data very easily and can contribute this data for our nation building. So मैं अभी मूवी को चला रहा हूँ। No sound. रिक्वेस्ट टू दी होस्ट हियर कि साउंड नहीं आ रहा है, तो इसको चेक कर सकते हैं प्लीज। थैंक यू। साउंड नहीं आ रहा है क्या वीडियो का? साउंड नहीं आ रहा है चिरंजीव। ओके, लेट मी ट्राई वंस मोर। नहीं आ रहा है सर साउंड। लेट मी ट्राई वंस मोर। Chiranjeev, can you please share the computer sound with everybody? That will help everybody listen to the video. I did it already. You might have to take out your earphones and put it on. I think so. I'm doing that. Can you please check the sound is there? Yes. यस आ गया। Sorry for this. यस। हमारी 80% पानी की जरूरत भूजल से पूरी होती है। आवाज नहीं आता है सर।
सर सिर्फ डिस्टरबेंस आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, क्लियर ऑडियो नहीं आ रहा है। हमारी 80% पानी की जरूरतें भूजल से पूरी होती हैं। भूजल के अंधाधुंध इस्तेमाल से उसका स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए सबसे पहले जरूरत है उसके सही आकलन की। भूजल स्तर को नापने के लिए हमने बनाया है वेल मॉनिटरिंग टूल, यानी कुओं में पानी की गहराई नापने के लिए एक ऐप। तो आओ नापो जल बदलो कल। डाउनलोड करने के लिए चाहिए एंड्रॉइड फोन और इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट ऑन करके फोन के ब्राउजर पर टाइप करें https://wmt.indiaobservatory.org.in। यूआरएल टाइप करते ही स्क्रीन पे जो पेज खुलेगा उसके निचले हिस्से में है ये लिंक। इस लिंक को 3 सेकंड दबाएं। फिर जो पेज खुलेगा फिर डाउनलोड लिंक बटन को दबाएं। लिंक दबाते ही टूल आपके मोबाइल पे डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड के बाद ऐप चुन के इंस्टॉल का बटन दबाते ही हमारा वेल मॉनिटरिंग टूल आपके मोबाइल पे इंस्टॉल होने लगेगा। इंस्टॉलेशन के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का स्क्रीन आएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना नाम, अपनी संस्था का नाम और मोबाइल नंबर भरना होगा। राज्य और जिला ड्रॉप डाउन मेन्यू। स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू में आ जाएंगे। इस लिस्ट से अपना डिस्ट्रिक्ट चुनिए। सेलेक्ट करके लिस्ट से अपनी संस्था को चुनिए। अगर लिस्ट में आपकी संस्था का नाम नहीं है तो अदर सेलेक्ट करके अपनी संस्था का नाम। मॉनिटरिंग टूल इस्तेमाल के लिए तैयार है, लेकिन पहले डेटा कलेक्ट करने के नियम जानिए। हर गांव से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 3 कुओं के पानी का नाप लेना। हमें कुओं के जल स्तर की दबाई साल में 2 बार करनी है, मानसून से पहले और मानसून के बाद। बारिश के मौसम में दबाई बारिश के 5 दिन बाद ही करनी। अगर कुआं सूखा हो कुएं की गहराई नापनी है, और अगर कुएं में पानी है तो हमें पानी के ऊपरी स्तर को नापना है। पानी के स्तर की लंबाई मीटर में करें। जल स्तर नापने से पहले सुनिश्चित करें कुएं से पिछले 24 घंटे में मोटर से पानी नहीं निकाला गया। हमें अधिकतर ओपन वेल का नाप लेना है। ओपन वेल मतलब खुला कुआं। अगर आपके पास वाटर लेवल कोई इंस्ट्रूमेंट है तभी आप बोरवेल का नाप लो। डेटा कलेक्ट करने के आपको चाहिए फोन इंस्टॉल किया है और 50 से 100 मीटर लंबा मेजरिंग टेप। आइए देखिए कुएं का भूजल स्तर कैसे नापा जाता है। कुएं के पास पहुंच बटन पर क्लिक करके खोल लीजिए। टूल आपको जीपीएस इनेबल करने के लिए बोल मोबाइल के लोकेशन इनेबलिंग फीचर ऑन कर वजह से आपका जीपीएस ऑन नहीं। टूल की ऊपरी दाहिने कोने सात बटन आएंगे। ऊपर वाला नीला बटन आपके मोबाइल का जीपीएस ऑन हो जाएगा। अब आपके मोबाइल की स्क्रीन पर गूगल मैप खुलेगा जिसपे आपका बटन सेटिंग का। इसे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है गाँव से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं पहले भी डेटा इकट्ठा किया गया। इस गांव से किन कुओं से डेटा इकट्ठा किया गया है ये जानने के लिए आप बटन में से जो बटन है उस पर क्लिक करें। आपको राज्य, जिला और गांव समय गांव के नक्शे पर दिखाई देंगे। आप जब किसी एक कुएं पे क्लिक करेंगे तो उस कुएं की लोकेशन के साथ उसकी
Audio lost. के लिए आप जब तीसरा बटन क्लिक करेंगे तब टूल आपसे पूछेगा आपको डेटा लेना है या नहीं। अगर आप यस क्लिक करेंगे तो डेटा लेने का पेज खुल जाएगा। अब मोबाइल को जमीन पर रखिए, हाथ में नहीं और ना ही कुएं के मुंडेर पर। जमीन पर रखने से ही टूल ऊंचाई और लोकेशन का सही मूल्यांकन करेगा। डेटा लेने के लिए आप इस बाईं तरफ के ऊपरी कोने वाले सेव बटन को दबाएं और WMT ऐप में इसके लोकेशन का लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, समय और तारीख सेव हो जाएगा। अब कुएं में पानी का स्तर नापना है। इसके लिए नापी टेप कुएं में लटकाएं और नोट करें कि पानी का स्तर जमीन से कितना नीचे है। नाप मीटर में ही लें। अगर नाप कुएं के मुंडेर से लेनी पड़े तो जमीन से कुएं की दीवार की ऊंचाई नाप लें और कुएं की दीवार की ऊंचाई को कुएं के पानी के स्तर की गहराई से घटा दें। अब टूल में डेटा एंटर करना है। इस पेज पर 8 सवाल हैं। पहले सवाल का जवाब स्क्रीन और लोकेशन कैप्चर बटन से आप दे चुके हैं। दूसरा सवाल है राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव को सेलेक्ट करने का। चारों के जवाब ड्रॉप डाउन मेन्यू में हैं। पहले स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद ब्लॉक और अंत में गांव की लिस्ट से गांव चुन लें। तीसरे सवाल के जवाब में कुएं का इलाका या बस्ती एंटर कर दीजिए। वैसे सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं। चौथे सवाल के लिए अगर कुआं प्राइवेट है तो मालिक का नाम और अगर सार्वजनिक है तो कुआं जिस नाम से जाना जाता है वो एंटर करें। पांचवा सवाल है कुआं ओपन है या बोरवेल। इस सवाल का जवाब ड्रॉप डाउन मेन्यू से चुनें। छठा सवाल कुएं में पानी है या नहीं। इसका जवाब भी ड्रॉप डाउन मेन्यू में है। अगर जवाब में आप यस दबाते हैं तो सातवां क्वेश्चन है डेप्थ ऑफ वाटर, मतलब पानी के स्तर की गहराई। इस सवाल का जवाब आपको मीटर में लिखना है। अगर कुआं सूखा है तो कुएं की गहराई लिख दें। आठवां सवाल है कुएं का फोटोग्राफ। जैसे ही आप फोटोग्राफ का बटन क्लिक करेंगे आपके मोबाइल का कैमरा ऑन हो जाएगा। अब कुएं का फोटो लेकर टूल पर सेव कर दें। अगर आप पानी का क्वालिटी टेस्ट नहीं कर रहे तो यहाँ कुछ नहीं भरना। आप सीधे सबमिट बटन क्लिक करिए। इसको दबाते ही फॉर्म आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। इस तरह आप 1 से लेकर 1000 कुओं का जल स्तर नापकर WMT ऐप में उस डेटा को सेव कर सकते हैं। डेटा अपलोड करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी। इसके लिए चौथा बटन क्लिक करें। इसको क्लिक करते ही स्क्रीन पर जितने कुओं की नापी आपने की है सबके फॉर्म्स आप देख पाएंगे। जिन जिन कुओं का जल स्तर नापने का काम तसल्ली बख्श पूरा हुआ है उन सब के फॉर्म्स को सिलेक्ट करके अपलोड बटन दबा दीजिए। किसी फॉर्म को डिलीट करना है तो उस फॉर्म को सिलेक्ट करके डिलीट बटन दबाएं। फॉर्म को दोबारा देखने के लिए व्यू क्लिक करें। अपलोड करते ही चौथे बटन वाली स्क्रीन में कोई फॉर्म दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब है कि आपका फॉर्म अपलोड हो गया है। सेव्ड लिस्ट को सेलेक्ट करके आप मोबाइल से डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद आप रिकॉर्ड सिर्फ पोर्टल पर देख सकेंगे। उदाहरण के तौर पर आप इस मैप पर देख सकते हैं कि मॉनसून से पहले कहां-कहां से डेटा इकट्ठा किया गया है। सपोर्ट के लिए आप हमें support@indiaobservatory.org.in पे लिखें। याद रखिए, नापो जल, बदलो कल। Thank you for listening this and watching the video. Now, may I request Sundar bhai to take it ahead from here, please? थैंक यू सर चिरंजीव। एक गांव से 3 कुएं मापना है क्या? Sorry. सर एक गांव से 3 कुएं ही लेना है, 3 कुएं का ही डेटा मिनिमम एक और मैक्सिमम जितना ले पाओगे उतना अच्छा आएगा। तो लेकिन एक गांव से 1 से 3 कुआं होना चाहिए।
आप जित हो जा रहे हो। वीडियो में 3 बता रहा था सर मैक्सिमम, इसलिए पूछा। नहीं मैक्सिमम नहीं, नंबर कुछ फिक्स नहीं है। हम लोग एक्चुअली प्री मानसून टाइम में ये लॉकडाउन के कारण में हम लोग 1 से 3 कुआं बोले थे। जितना ज्यादा कुआं आएगा उतना अच्छा डेटा, उतना अच्छा एनालिसिस हो पाएगा। ओके, थैंक यू सर। यहाँ पर एक गुरुदेव का हाथ हैंड रेज किया हुआ है। आपको रिक्वेस्ट सभी को ये है कि आप जिनको भी सवाल पूछना है वो पहले अपना हैंड रेज करें। सो द रिक्वेस्ट एवरीबडी हियर इज प्लीज रेज योर हैंड्स एंड देन यू विल बी कॉल्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। सो गुरुदेव प्लीज यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड सर नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। हेलो गुरुदेव जी बोलिए। सर, पहले जो हम प्री मॉनसून में वो डाटा कलेक्ट किए थे, हाँ। उसका एप्स हमारे पास है, तो एप्स चलेगा कि नहीं, दूसरा उसको वाला, डिलीट नया वाला उसको डिलीट काम कर है? दीजिए गुरुदेव जी, उसको डिलीट कर दीजिए। और ये उसी जहां से आप डाउनलोड किए थे ना, वही यूआरएल से आप नया हाँ, टूल को डाउनलोड कर पाओगे। इसमें 2 चीज नया से डाला गया है। एक है जैसे पुराना कुआं को हाँ, देखने का सुविधा, और दूसरा वाटर क्वालिटी डेटा लेने का हाँ, सुविधा। ये दोनों को हम लोगों ने नया से इंटीग्रेट करा है सर। हाँ इसलिए। सर, और एक बात है, हाँ जी। जो पहले जो हम प्री मॉनसून में लिए थे डाटा, उसको हमें अलग अलग आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, दोबारा बोलिए प्लीज। मॉनसून के हमने जो कुएं वाला डाटा लिए थे, वो हाँ। उस कुएं को दोबारा जाना पड़ेगा कि अलग हाँ, अलग? उसी कुएं को दोबारा जाना ही पड़ेगा। जो आप पहले लिए थे उसमें हाँ। जाना ही है। और उसके अलावा आप हाँ, नया कुछ और डेटा ले पाओगे तो बहुत बढ़िया होगा। नेक्स्ट शाहबाज सुरती। शाहबाज सुरती जिसका हैंड रेज किया हुआ है। यस, मेरा यही क्वेश्चन था कि जो प्री मॉनसून में अपन ने डेटा लिया है वही वेल का लेना है या तो फिर दूसरे वेल का भी चलेगा? लेकिन अभी आपने जैसे क्लियर किया कि वही डेटा लेना है जो वेल का लिया हुआ है। अब मैं एडिशनल में ये जानना चाहूंगा सर कि हम एक गांव में से मिनिमम 3, चलो समझो मिनिमम 3 भी ले रहा हूं मैं, लेकिन मैं मैक्सिमम जितना भी ले रहा हूँ, अगर वो पोस्ट प्री मॉनसून में नहीं लिया है तो पोस्ट मॉनसून में चल जाएगा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल चलेगा। उसमें आपको बस थर्ड बटन दबा के नया वेल का नाम लिख के बनाना पड़ेगा। जैसे मैं बटन वहां दिखाया था ना कि सबसे नीचे वाला बटन क्लिक करोगे तो आपको पुराना कुआं दिखेगी। बराबर। और अगर नया कुआं ऐड करना चाहते हो तो आप थर्ड बटन में क्लिक कीजिए तो आपको नया ऑप्शन आएगा नया डेटा भरने के लिए। ओके सर, थैंक यू। यहाँ पर निखिल जी हैं नेक्स्ट। निखिल जी प्लीज अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नमस्ते सर। अभी हम 12 से 24 अक्टूबर के बीच पोस्ट मानसून का लेवल ले रहे हैं। और बार क्या होता है कि कुएं से पानी निकालना ऑलरेडी शुरू हो गया है, तो हमें कौन से लेवल में इंटरेस्ट है? जो पोस्ट मानसून हाईएस्ट लेवल है उसमें इंटरेस्ट है या एक्चुअल लेवल में इंटरेस्ट है? पोस्ट मानसून में मतलब अगर हम लोग कोशिश कीजिएगा कि लास्ट 24 घंटे से उस वेल में पंपिंग नहीं हुआ है, कोशिश कीजिएगा वो डेटा लेने के लिए। अगर पंपिंग हुआ है तो उस डेटा को आप मत लीजिए, क्योंकि गलत डेटा आने से अच्छा है कि ना डेटा आए, है ना। तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि ऐसे ही वेल पर जाने के लिए जहां पर लास्ट 24 घंटे में एटलीस्ट पंपिंग नहीं हुआ है। नहीं, 24 घंटे का सवाल नहीं था सर। खरीफ में भी कुएं से पानी निकाल के देते हैं, रबी सीजन के स्टार्ट में भी देते हैं, तो जो हाईएस्ट लेवल है वो अब नहीं, हाईएस्ट लेवल में जो एक्चुअल डेटा चाहिए। हाईएस्ट कितना चल रहा है वो तो शायद 7 दिन पहले चल रहा होगा, लेकिन आज का जैसे आप एक ही टाइम पे डेटा ले रहे हो ना, तो एक ही टाइम पे ही वो डेटा को एनालिसिस करना होता है। इसलिए आप एक्चुअल डेटा को लीजिए। ओके, बस इतना ख्याल रखिएगा कि वो उसमें पंपिंग नहीं हुआ है, लास्ट 24-25 घंटे में पंपिंग नहीं हुआ है बस। हाँ, और पंपिंग के साथ बाहर से भी पानी डालते हैं, बोरवेल से निकाल के कुएं में डालते हैं, तो उस तरीके का कुएं को आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रदीप बेहरा जी। प्रदीप बेहरा जी, आप खुद को अनम्यूट करके प्लीज सवाल पूछ सकते हैं। प्रदीप बेहरा। अगर नहीं तो हम लोग जाते हैं कुमार रूपम पे। कुमार रूपम जी, आप अपना
अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं प्लीज। मेरा सवाल ये है कि आज जो आपने टूल्स WMT का सेकंड वर्जन जो आपने बताया, इसमें कुछ नए फीचर्स हैं। जब हमने प्री मानसून में कलेक्ट किया था तो दैट वाज वर्जन 1.1 और 1.0। तो अभी क्या सभी को चेंज करना जरूरी, अपडेट करना जरूरी है, या पुराने टूल से भी हम ले सकते हैं? नहीं, पुराने टूल से सिर्फ आप नया डेटा ही ले पाओगे, पुराना वेल आपको उसमें दिखेगी नहीं। हाँ, तो ना तो आप वाटर क्वालिटी का, अगर किसी को वाटर क्वालिटी का भी करना है वो नहीं मिलेगी। इसलिए आप सबसे निवेदन यह है कि आप लोग पुराने वाले को डिलीट कर दीजिए और नया टूल को अपलोड कीजिए और डाउनलोड कीजिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट यहाँ पे है, यहाँ पर जो दिख रहा है SS घंटी दियोदुर्ग ना। Yeah, just my question is, actually when we looked at the monitoring of each well in the villages, yes, whether could it will be analyzing the level of watering. So is there any recommendation it shows what needs to be done for this well has to be regenerated? Only the status is going to show. थोड़ा सा आपका I am not able to understand your questions properly. Can you please repeat it? Yeah, just I would like to ask you. Others please mute. पेज खत्म हो जाए कम पड़े तो बताना, दे दूंगा। Just अभी हम कुएं का ये देखता नहीं। Some disturbance is there. Disturbance is there. अनिल दोरिया होस्ट को, अनिल दोरिया जी प्लीज म्यूट कर सकते हैं? जी जी, थैंक यू। बोलिए जी। Yeah, just my opinion is that when we are going to monitor the wells at the village level, when it shows the status of analytical report, at the same time, would it possible to show what kind of treatment need to be done for regeneration in this software? Okay, I understand. So this, not by this tool, but there is another tool available for that particular reasons, for the recommendations kind of thing, which we call CLART, the Composite Landscape Assessment and Restorations tool. Yeah, that is there. Yeah, you can actually use that tool for the recommendations thing for that particular location. Okay, here actually only we are seeing what kind of depth is there. Yes, it is only providing the facility to collect data from the field. This is a data collections kind of tool. Okay. And then we'll analyze it, and then we'll share the block level, village level maps, as well as the updated tool for CLART, so that you can use it more accurately in the field. Even borewell also we can check, You can check borewell. The major problem with the borewell is that you need to have an instrument to measure borewell, because you cannot see water there. But how you have any instrument for borewell? There are several water level indicators available, but you need to purchase that. So can you send some of the equipments which is better for monitoring of borewell? Sure. Okay. Sure. Okay. Thank you. Thank you. यहाँ पे नेक्स्ट है संजीव सारंगी। संजीव सारंगी, आप अनम्यूट करके यहाँ पे बात कर सकते हैं। यस। या थैंक यू। आई एम फ्रॉम इंडियन ग्रामीण सर्विसेज। सो चिरंजीत जो प्रेजेंट कर रहे थे रिगार्डिंग दी वाटर क्वालिटी कैप्चर करने के लिए कोई EGS टूल या कोई एडवाइजरी है जो हमारे टीम मेंबर जब ये वाटर लेवल को कैप्चर करेगा उस टाइम पे वाटर क्वालिटी को भी हम लोग कैप्चर कर सकते हैं? ऐसे कुछ EGS प्रोसेस है? सुंदर भाई। यस संजीव जी, तो अभी हम लोग इसको टेस्ट ही कर रहे हैं इस बार कर्नाटका में इस टूल को, और कोशिश ये है कि जैसे आप जानते हैं कि वाटर क्वालिटी को अगर टेस्ट करना है तो कई तरीके हैं। जैसे आप सीधे लेबोरेटरी में वाटर सैंपल देकर भी कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेबोरेटरीज हैं, ब्लॉक लेबोरेटरीज हैं, मगर यहाँ पे जो कोशिश कर रहे हैं कि एक सरल तरीके से, सिंपल तरीके से कैसे फील्ड में आप टेस्ट कर सकते हैं। कई सारे टेस्टिंग किट्स अवेलेबल है ना, कि आप जहाँ पर मौजूद हैं, आपकी जगह कौन सी है, उसके बल पर जो पैरामीटर्स आपको यूज़ करना चाहिए वाटर क्वालिटी के लिए, पानी की गुणवत्ता के लिए, तो वो आपको सजेस्ट किया जा सकता है। तो अभी तक वाटर क्वालिटी में इस फेज में हम लोग इस पॉइंट तक नहीं पहुंचे हैं कि आपको क्योंकि अक्टूबर 12 तारीख को आपको शुरू करना है, तो जो टेस्टिंग किट नहीं तो रिएजेंट है
आप तक पहुंचाना तो वो कम समय में, मगर अगर किसी को इसके ऊपर काम करना है तो प्लीज़ आप हमको लिखिए, ईमेल लिखिए कि कोई भी तरीके से अप्रोच कीजिए WMT की टीम को, और हम आपको पूरी सपोर्ट देंगे कि आप इस फेज में ही आप वाटर क्वालिटी फील्ड टेस्टिंग किट्स के जरिए यहाँ पर वाटर क्वालिटी डेटा सबमिट कर पाएंगे कि नहीं, इसका पूरा सपोर्ट हम आपको देंगे। तो बेसिकली यहाँ पर समझ यही है कि वाटर क्वालिटी फील्ड टेस्टिंग किट्स को लेकर यहाँ पर आप डेटा सबमिट करें। उसमें सेंसर्स भी आजकल अवेलेबल हैं, 2 जगह हैं जहाँ पर सेंसर्स भी अवेलेबल हैं, मगर वाटर टेस्टिंग किट्स आपको कई जगह से मिल सकते हैं। तो वो कोई भी डेटा हो उसको सबमिट करने के लिए यहाँ पर फील्ड्स दिए गए हैं, जिसके जरिए आप वाटर क्वालिटी डेटा सबमिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट हैं बायफ से शशिकांत महत्री जी। प्लीज शशिकांत जी आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। यस शशिकांत जी, आपको सुनाई दे रहा है? शशिकांत जी, शशिकांत महत्री फ्रॉम बायफ। इफ नॉट we'll move to रत्नेश फ्रॉम सिरिजन कोरिया छत्तीसगढ़। रत्नेश जी। हेलो। यस। मैं रत्नेश सृजन कोरिया से। मेरा सवाल ये था कि जैसा आपने बताया कि हम एक विलेज। रत्नेश जी आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। रत्नेश जी अगर आप खुद को फिर से अनम्यूट कर सकते हैं क्योंकि आपका म्यूट हो गया है। हाँ, अभी आप फिर से बात कर सकते हैं प्लीज रत्नेश जी, आपको रिपीट करना पड़ेगा। मैं ये बोल रहा था सर कि जैसे आपने अभी बताया कि 1 से 3 कुओं का हम डेटा एक गांव से ले सकते हैं, और इसमें सर जो डेटा हम लेंगे तो क्या हम इसको एनालिसिस बेस पे ले सकते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं 1 या 3 का हम जो ले रहे हैं तो वो उस ग्राम पंचायत या उस विलेज को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, कि हम लोग जो एनालिसिस करेंगे या हमारे डेटा में जो काम आएगा वो उस पंचायत वाइज क्या इम्पैक्ट पड़ा आफ्टर 2-3 ईयर वाटरशेड का काम करने के बाद, तो इसको हम किस तरीके से देख सकते हैं कि भाई हम एक विलेज में या एक पंचायत में कितने हमको कम से कम एनालिसिस पर्पस या इम्पैक्ट पर्पस के हिसाब से हम उसको देख पाए। देखिए रत्नेश जी, इसमें अलग अलग तरीका है। तो पहला है कि हमारे पास तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि डेटा है नहीं किसी के पास। सरकार ने जो डेटा ले रहा है वो भी बहुत ही अच्छा डेटा नहीं है, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन का बहुत खराब है। तो इस कैंपेन से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादातर ज्यादा कुएं को मेजर किया जाए। तो इस हिसाब से जैसे मैंने पहले बता रहा था कि अगर हमने 6.5 लाख वेल्स हर एक गांव से एक भी ले लेते हैं तो हमें ओवरऑल बहुत अच्छा पिक्चर आ जाएगी। जितना ज्यादा वेल हम मॉनिटर कर पाएंगे उतना अच्छा एक्यूरेसी बढ़ेगा इस चीज का, एनालिसिस का। लेकिन हम लोग कवरेज इंक्रीज करने के लिए अभी जो स्टेज पे है इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 1 से 3 वेल एक गांव से भी आ जाए, तो हम लोग ब्लॉक लेवल पे जो या पंचायत लेवल पे जो मैप का बात कर रहे हैं तो एक ढंग की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, जिससे हम लोगों का एनालिटिकल या एनालिसिस जो इसका भी बात करोगे वो कर सकते हैं हम लोग। लेकिन उसको और माइन्यूटली बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करने के लिए सिर्फ वाटर टेबल या पानी का वाटर लेवल मापने से नहीं होता है। उसके लिए डिटेल हाइड्रोजियोलॉजी स्टडी अलग अलग तरीके से करने का जरूरत पड़ता है। तो कोशिश ये है कि जितना ज्यादा से ज्यादा वेल को हम लोग कलेक्ट कर पाए, जिस तरीके से हम लोग एटलीस्ट एक ढंग की एनालिटिकल मैप बना पाए उस पंचायत, उस गांव, इवन उस ब्लॉक लेवल पे। ये इस कैंपेन का मेन मुद्दा है, मेन टारगेट्स है। और धीरे धीरे हम लोग कोशिश करें, क्योंकि ये शुरुआत है, पायलटिंग से हम लोग अभी स्केल पे जा रहे हैं। जितना दिन जाएगा शायद हम लोग सब मिलके इस दिशा पे चल पाएंगे कि मैं भी आज नहीं लेकिन 2 साल बाद जो आप सोच रहे हो कि हर गांव का हर कुआं से हम लोग डेटा ले पाए, जिस कारण हम लोग बहुत अच्छे से एनालिसिस रिपोर्ट निकाल पाए। तो वो तो आगे करना ही है कभी ना कभी, मतलब इस दिशा पे। लेकिन अभी का स्टेज पे हम लोग ये चाह रहे हैं कि एटलीस्ट 1 से 3 कुआं और गांव से आ जाते हैं
तो एक अच्छे तरीके से हम लोग एनालिटिकल मैप बना पाएंगे. मे बी दैट इज नॉट 100% एक्यूरेट, बट far better than what it is today. चिरंजीव जी, ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर ऑलरेडी हम लोगों ने हर गांव में 10 से 12 कुएं का डेटा एक एवरेज लिया हुआ है. डीपीआर बनाते समय हम लोगों ने लिया हुआ था. बिल्कुल. तो क्या हम उस 10-12 के बिहाफ पे उस पंचायत या उस विलेज को जस्टिफाई कर सकते हैं क्या? उससे डिटेल एनालिसिस या इम्पैक्ट उस नजरिए से आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको आपका कितना दिन का डेटा है, किस तरीके से डेटा है, वो एक बार देखना पड़ेगा. मेरे पास यहाँ पर साथिया है जो एक्वाडेम से भी है. इफ यू वांट टू आल्सो स्पीक, प्लीज यू कैन स्पीक देयर. नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक गांव से अगर 10 वेल है और वो लंबा टाइम में वो डेटा को लिया गया है, उससे भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मैप बना सकते हैं, एनालिसिस बना सकते हैं. जी, इसमें इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक और सवाल था कि हम लोगों ने पिछले साल सितंबर अक्टूबर के मंथ में हमने 41 ग्राम पंचायत का डेटा कलेक्ट किया हुआ था. अच्छा. तो अभी लॉकडाउन के इसमें हमने प्री मानसून का डेटा हम लोग कलेक्ट नहीं कर पाए. तो फिर हमारे पास में पिछले साल का वही सितंबर अक्टूबर नवंबर का डेटा है, और अभी हम लोग वही फिर कलेक्ट करें कि नहीं करें, तो उसको नहीं, आप बिल्कुल कलेक्ट कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. अगर आपके पास सितंबर अक्टूबर का डेटा है तो शायद हम लोग डायरेक्टली इस टूल के सहायता से आपको नहीं कर पाएंगे, बट हम लोग एक दूसरा लेवल पे बात करके आपका वो डेटा और ये जो डेटा आप लोगे, ये दोनों का एनालिसिस बना ही सकते हैं. बिल्कुल पॉसिबल है. तो इसलिए आप डेटा तो इस बार, क्योंकि डेटा एक बार ये टाइम चला जाएगा तो ये टाइम वापस नहीं आएगा आपको डेटा देने के लिए, क्योंकि वाटर लेवल अगर नीचे चला जाएगा तो आपके पास कभी वो सुविधा उपलब्ध नहीं होगा कि आप दोबारा वो डेटा को ले पाओ. इसलिए थोड़ा सा अगर हम लोग मिलके कोशिश करें और डेटा को ना मिस करें तो वो सबसे ज्यादा अच्छा होगा. अच्छा, तो क्या हम पिछले साल के जो सितंबर अक्टूबर में हमने नवंबर में जो डेटा लिया है और इस साल जो हम लेंगे डेटा, तो इसमें कुछ एनालिसिस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. ओके. अच्छा, इसमें एक और सवाल था मेरा कि हम लोग जो ये पुराना हमारा पिछले साल का डेटा है, वो क्या हम इस ऐप पे अपलोड कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इस ऐप में फिलहाल ये प्री मानसून को हम लोग बेस मान के चल रहा है. जो 2020 का प्री मानसून है, वहां से हम लोग आगे का डेटा कंटिन्यूसली रखेंगे. बट आप वो डेटा में शेयर कर सकते हो, तो हम इसको डेटाबेस में डाल के एक कनेक्शंस बनाने का कोशिश करेंगे. यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है कि जो यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं कि सिर्फ वो पर्सन अपना वीडियो अगर ऑन कर सकते हैं तो अच्छा हो सकता है ना इस कॉन्वर्सेशन में. जो भी आगे भी जो भी आकर कर रहे हैं, अगर आपकी बैंडविड्थ इसको अलाउ करती है, इंटरनेट अलाउ. थैंक यू. ठीक. चिरंजीव, एक क्वेश्चन आया था इसके पहले भी कि एक इंग्लिश में अगर शॉर्ट समरी हो सकता है, बिकॉज सम पीपल हैव मिस्ड द हिंदी थिंग टोटली. आई एम श्योर, मैंने देखा कि यू हैव ट्राइड मल्टीलिंगुअल इन योर एंटायर थिंग. काफी बार के मल्टीलिंगुअल में बाद में एक कोई लैंग्वेज मिस हो जाता है ना. तो इफ यू कैन डू अ वेरी शॉर्ट इंग्लिश समरी ऑफ मे बी 2 minutes, I think it might help a lot of people who joined also later, because there is also a YouTube audience, and maybe also we can request the host here to take questions from also the YouTube audience and bring here, because there is a wider audience apart from people. Okay. If Kiran can help, that's fine. And may I request Bala to speak on the 2-3 minutes thing, if it is possible for him. Otherwise, I will. Sure. Bala, thank you, Kiran. Yeah, I'll share any questions if they're on YouTube. Yeah. So Bala, please go ahead. Am I audible? Yes, you are audible. Okay. So I think Chiranjit has covered a lot of detail in his presentation. So just to give a brief summary of that, we have basically taking on from what Sundar had talked about the need for this kind of an initiative and how it started. Basically, we started with a pre-monsoon groundwater monitoring round,
where around 17,000 wells data could be collected by 40 organizations. And this happened with the when the lockdown was going on. So there were a lot of limitations. So the important thing is that all the partners used a common app to collect data and a common set of protocols, so that we have good quality data. And based on that data, and during the process also, I think Chiranjit didn't mention it, but a lot of hand-holding and support also went to all the partners, queries from the field and any doubts and small issues with the whole process. All of that also happened. And then as a result of that, from the data that was collected, a set of analytical maps were made at the block level. So, and as Chiranjit also presented, certain areas have a good density of wells, which helped us to get a better representation of the groundwater situation as compared to the CGWB secondary data. And this is basically, we should remember that this is a starting point, and the kind of wells that we are choosing and monitoring that we are doing, the idea is to do this twice a year at least over a number of years. So that data set will then yield a lot of analysis. And again, to emphasize the other issue that Chiranjit mentioned, that we need to have a good understanding of the aquifers. And for that, groundwater level data is important. It's important to collect this over a period of time. And this year we are also adding, in the post-monsoon season, we are also adding water quality related data. So INREM is piloting that with FES in Karnataka. And with that experience, we will be able to better build in that system, so that in the next season we can roll it out to everyone. In the meantime, if anyone is interested in adding water quality in the current season, you can talk to us directly and we can help with that. The other point also which Chiranjit mentioned, and it came up in the questions, was regarding the use of this data in the field to help with water recharge or with certain structures. So one other output which has come from this is that the Clark tool, I think many of you might know that. It's an Android app that can be used to get inputs on the water recharge level, or how good it is for recharge, or whether it is an area that doesn't support recharge. So there is a kind of a scale, and according to that, it gives a recommendation for a particular location. So that is largely based on secondary data and some primary data. That has now been made more accurate with this data that has been collected. So that is another way in which this data can be applied back to the field to help communities that we are working with. And in the post-monsoon, the app also allows you to now look at the old data which has been collected in the pre-monsoon and directly add the current water level data for those wells. So basically it makes revisiting the old wells easier. So this is useful for all the partners who have already been involved in the pre-monsoon season. For those who are joining in new or who are expanding the coverage of wells, you can always add a new well and start collecting data from that. And as far as the number of wells is concerned, we had the lockdown situation as one factor earlier, but we were also looking at what is the kind of set of wells that we can continue to monitor over a long period of time. So that was another reason for saying 1 to 3. But as Chiranjit also clarified, we can take as many wells as we can in our area, depending on the context. If you're working in a very concentrated way in a few panchayats and you have the presence, please go ahead and collect more denser data. But keep in mind that the real value of this is in being able to revisit this every year, at least twice a year, and so that we have a time series picture of that, and we can also use it to look at impact or how things are changing over time. For greater clarity, we will be sharing the video and the PowerPoint with everyone. And so you can, always write to us at support@indiaobservatory.org.in
for any queries and clarifications, or if you want to discuss specifically some more detailed plans of your organization and how we can help with that. So yeah, I think I've covered most of the points. If there are any more questions, we'll be happy to answer them. Thank you, Bala. I think it helped a lot, especially for those people who might have missed it, in Hindi, or maybe who joined late. Also to add that, this is probably one of the first times that an organization, an NGO in the country has come forward to, create this whole infrastructure, this whole digital infrastructure with IO, India Observatory. But not just that, but with this app, making it really easy for people on ground to really not just submit information, but also to consume. As Chiranjit mentioned, you can actually go ahead with the single data that you contribute is from your side, but then you can actually consume data from everybody, right? So that is the common benefit for everybody here, because we are all gaining from each other, right? So it is not just my 3 wells or my 5 points or 20 points, but then it is the 1700 points that all of us have contributed, which is helping us. And in this time, we can actually take this collective effort from 17,000 to much more, let's say 100,000, 1 lakh or more. I think it will be a wonderful community generated, crowdsourced information, and one of a kind, and it is all of us as a collective, who will be owning this and who will be taking this back on ground. And especially, I think what will be very interesting to hear from everybody, maybe not now, maybe later, is that what are the stories behind each of the data points you're collecting? How are you taking it back to community? How is it empowering people on ground? How is it helping them to take decisions and improve the status of water, livelihoods, agriculture, and so on in the particular places where this data is being generated? Maybe it could be, Chiranjit, the subject of future webinar where particular case studies can be taken up from different places, and I'm sure there will be a lot of diverse ways in which people are using this data and taking it to the field and bringing it back, and that could be very interesting for all of us to listen to. Definitely. I think the Nitish Suryavanshi, who has been raising that, is Nikhil, has Nikhil been raising hand for a while, or is it something from before? If not, we'll go to Hi, sir. Nitish Kumar Suryavanshi. Hi, sir. Good afternoon, Kumar. everyone. Yes. CLART is a technical tool, means one man or one person can operate easily, or some technical competency required? No. The for CLART CLART. tool is very much user friendly, and even don't judge me by my word. Even a semi-literate person can also use it. So this is a very simple tool which is color coded, and this tool is available in open source. You can download it. All the related information is available in India Observatory website. You can visit the website indiaobservatory.org.in. From there, you can download the tool. You get the user manual, everything there. This is a very simple tool which can be used by anyone. Okay, thank you, Chiranjit. Thank you. So Chiranjit, also one of the questions in the chat box here was about, how will you get all this information to people, because there might also have been people who just joined this webinar, आपने आप link देखकर लोगों ने join किया हो, तो ये सब जो जानकारी है वो उन तक कैसे पहुंची, लोगों को जानना जरूरी। जो वेबसाइट है WMT का जो वेबसाइट है इंडिया ऑब्जर्वेटरी में, जो बार बार यहाँ पर लिखा गया है चैट में, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर बाला ने भी कहा है कि जो आज की जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, जो फिल्म है, ये सब वहाँ पर अवेलेबल होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी है कि ये जो फिल्म है वो अब तक प्रीमियर नहीं किया गया, सबसे पहले यहाँ पर दिखाया गया है। आज जो ये फिल्म जो चिरंजीत ने यहाँ पर जो स्क्रीन शेयर किया था, तो ये YouTube में अगले 2 दिन के अंदर इसका प्रीमियर होगा। और आई थिंक ये लिंक वहीं पे वही जो लिंक है, जो WMT वाला लिंक है, वहाँ पर आप जो इसको जाकर देख सकते हैं और YouTube के जरिए इसको एक्सेस कर सकते हैं। नहीं तो जैसे चिरंजीत ने कहा, व्हाट्सएप और कोई और जरिए से भी आप तक इसको फेसबुक पहुंचा सकते हैं। तो आप बस रुक सकते हैं इसके लिए 1 दिन के कुछ, तो YouTube में इसका प्रीमियर रिलीज होगा और ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चिरंजीत, am I right? बिल्कुल, yes, you are absolutely right. We will share this through the premiere of the YouTube, as well as by tomorrow we will also share a smaller version
so that you can easily send it through WhatsApp. Smaller version means the resolution may be smaller, the size will be smaller, but the content will be same. Everything will be same. So that you can easily share it with all the people through WhatsApp also. Thank you, Chiranjit. So I think इसके साथ हम लोग we can go towards conclusion, this webinar. तो अगर और किसी को कोई सवाल नहीं है, अगर है तो अभी भी हम लोग एक लास्ट कोई सवाल ले सकते हैं. We can take another last question. We still have maybe time for just one question, but if not, I think we can go towards conclusion. And Chiranjit, would you like to just say, any last words towards this 12th to 24th, right? ये जो campaign है. So yeah, exactly, Sundar. So my point is, the only last point is that bachao jal, bachao kal. Yeah. So as I was mentioning, the only point that I want to mention here, that unless until we join hands together, we will not able to generate this data, because this is the data that can actually build a very good data set on the water situations of the country. So please join hands, please contribute data in this portal, because this is not the initiative by FES or INDREM or Aquadem. This is done by all of our partners, all of our friends, all of the people of the country who can contribute the data. So let's napo jal and bachao kal. थैंक यू चिरंजीत. और हम लोग जब बात कर रहे थे तो एक हैंड रेज मैंने देखा शाहबाज सुरती से. अगर ये आपको इंटरेक्ट करना है तो अभी भी समय है. लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम शाहबाज सुरती प्लीज, और शशिकांत मेहत्रे आल्सो प्लीज गो अहेड. मैं शाहबाज सुरती बात कर रहा हूँ आनंदी इंडिया से. तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था कि अभी हमारे ग्रुप में हमारी टीम में कितने लोग ऐसे हैं जिसका डेटा सबमिट नहीं हुआ, अपलोड नहीं हुआ. जो पोस्ट प्री मॉनसून का डेटा लिया था वो अभी तक अपलोड नहीं हुआ. तो क्या उसको अभी अपलोड कर देंगे तो विल इट बी हेल्पफुल टू यू, और फिर क्या मतलब उसका क्या आप सजेशन दोगे मुझे? जो प्री मॉनसून में आप कलेक्ट किए थे, अपलोड नहीं कर पाए थे? Yes, नहीं sir. किया था. So you can upload it, because जो डेटा आप अपलोड करोगे वो उसमें भी जिस दिन का डेटा कलेक्ट हुआ है उसी दिन का डेटा दिखेगा उसमें. So anytime you can enrich the data. That is not a problem at all. So please upload those. Okay. Thank you, sir. Yeah. Okay. एंड अगर शशिकांत मेहत्री जी ने अगर हैंड रेज किया है तो वी कैन टेक लास्ट वन फ्रॉम यू. हेलो. यस शशिकांत जी बोलिए. हेलो. हाँ बोलिए शशिकांत जी, बोलिए. सुनाई दे रहा है. Good afternoon to all everybody. I am from BIOP. Especially my concern is we are implementing BIOP near about 12 state projects in watershed NRM related. Just pre-monsoon related data and post-monsoon related data. We have already each project there is a pre-monsoon water level data. We have every fortnightly, monthly we are taking this data, but post-monsoon data there is a scope to upload in our website. But my concern is in our project there is a interruption to outside. There is a wells to flow the canal system. There's outside the water will be flow in that well. So how this is we can achieve the accuracy of this pre-monsoon and post-monsoon water level is the correct level for decision taking of cropping pattern. So that's my concern. How this will be help this data, this tool for making the accuracy of decision taking at local level farmer. This is my water level, my village and my watershed, and we can plan of this cropping pattern. Can this help these tools for taking the decision of local level villages? Okay. Okay. So if I understand you correctly, that is all the wells or some of the wells in your locations are having influence of the different anthropogenic activities like canals and all other things, like if the canal water is coming into the well or not, or based on that, what is the best recommendation is possible for conservation of water as well for agriculture purposes, right? Yes. Yeah. No, So yes, you are right, sir. But my concern is if you are
this tool is connection with that region rainfall and recharge zone, because we are taking the water column. Well, lastly goal is the conclusion, which village is the water column available at every time span. And then crop planning. Last goal is the drinking water and crop planning. Now that concern, how it will be accurately. That's my concern. So there are two things. One is that once you are collecting the data, and then we are doing the analysis to bring out the best possible recommendations for that particular location. So one side is that there are already different other sets of data available other than the water table. So based on which there are tools available for your recommendations, not only for soil water conservation, but also for preparing water budgeting or other agriculture kind of tools. So those are already available in different public domain, and even in the India Observatory program, we also have some tools on these aspects. Now the question is that how to increase the accuracy, how to bridges the gap that is already there in the field. So if we can contribute this data in more accurate manner, then we can integrate these informations into the algorithm or into the system of the different mechanisms that is already available. So that is the idea. So say like 70-80% accurate tools are available in some places. Now this data will actually increase 10% more accuracy in the field. Yeah, that is the idea for this kind of initiative. Thank you. Only my suggestion is I will share Marathwada region 1 project data. Last 2 years we have taken every month water table data. In each, due to considering near water intervention, means watershed treatment, rainfall and soil structure. On that basis we have measures the every month water table. Our last goal is our project is how to take the decision making of how they will be reducing the vulnerability to perfect the crop planning. That's our project's goal. How to give the perfect solution of local farmers if in that village there is a water available for after rainy season from October to नियर अबाउट मई तक, ईच मंथ में कितना पानी वाटर टेबल रहेगा उस गांव में, उसी बेस पर वो क्रॉप का प्लानिंग कर सकते हैं रबी का और समर का. That's our concern, but there is some challenges, there is some constraint, and there is some lacuna considering central groundwater board is including also. In agriculture university there is some challenges. Where this our aim, sir, will provide, will discuss in more details and give the smoothing this decision for local level. Thank you, sir. Thank you, Sasikant ji. I think Chiranjeev, probably it might be a subject of further discussion. Yeah, it's a kind of water budgeting kind of thing. Definitely, yeah. So I take this opportunity to thank everybody here. सभी ने अपना समय लिया है और यहाँ पर ये जो नापो जल बचाओ कल जो ये कैंपेन है, एक तरीके का जो सोच है इंडिया ऑब्जर्वेटरी से, आईओ से, कि हम सब मिलकर काम करें. और ये जो शुरुआत है ना, जैसे चिरंजीत ने कई बार अभी कहा है कि जब तक ये शुरू नहीं करेंगे तब तक इसका रिजल्ट हमको दिखेगा नहीं, है ना. कि और ये जो डेटा हम जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पर, वो हमको कल काम आएगा, हम ही को. और जो शशिकांत जी ने कहा कि दो जो उद्देश्य हैं ज्यादातर गाँव में, एक तो पीने के पानी का और दूसरा है जो क्रॉप प्लानिंग का, है ना. और ये दोनों चीजों के लिए तभी ये डेटा रियली काम आएगा जब हम इसको बार बार जब दें. और ये पहली बार अभी पोस्ट मानसून के बाद ही इसका रियल जो तो let us all really come together next 2 weeks and contribute a lot of information in a meaningful way with a lot of participation from people on ground as much as we can, ताकि हर एक जो डेटा जो कंट्रीब्यूट होता है उसका मीनिंग लोगों को मिले और वो वापस जाए लोगों के पास. तो डेटा की जो कलेक्शन है उस प्रोसेस से ही उसका मीनिंग भी काफी बार निकलता है. और ये हर एक जो डेटा पॉइंट है वो लोगों के पास वापस जाए, वो सर्वर से लेकर डाउनलोड होकर आप जिन लोगों के साथ काम करते हैं उन समुदाय के पास वापस जाए, ये हम उम्मीद रखते हैं. और दोबारा मिलेंगे ना चिरंजीत, अगर ये जो वेबिनार इसके दौरान अगर लोगों को जरूरत है, दोबारा WMT टीम कैन ऑर्गेनाइज another support event, sure. And then we'll meet again
to discuss with the results of this whole webinar. So thank you very much, sabhi ko. Thank you, Chiranjeet. Thank you, Bala. Thank you, Kiran here for hosting us and all connecting to YouTube. We hope that people could join from YouTube also. There was a delay at the beginning, but we apologize for that, and hopefully you could get the gist of what we are talking about. And basically 12 तारीख और 24 तारीख ये दो दिन आप याद रखिए ना, और ये बस जो स्लोगन बार बार जो चिरंजीत कह रहे हैं कि नापो जल बचाओ कल, ये इसको याद रखिए। और ये यहाँ पर हम जितने लोग मौजूद हैं उसमें और लोगों के पास इस मैसेज को लेकर जाइए, तभी ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट हो पाएगा। थैंक यू एवरीबॉडी। और ये सारा डिस्कशन जो है वेबिनार का, ये वेबिनार अभी YouTube पे अवेलेबल भी रहेगा, किसी को भी जाके रेफरेंस करना है तो वो अवेलेबल रहेगा हमारे FES के YouTube चैनल। थैंक यू वेरी मच किरण जी। और हम उम्मीद रखते हैं कि ये जो लिंक है वो सब जल्दी वो लिंक में मिल जाए, वो WMT के जो वेबसाइट में मिल जाए, ताकि सभी लोग वहां पर जाकर ये पावर पॉइंट और हर चीज एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल, आधा घंटे 1 घंटे बाद आपको मिल जाएगा ये। Thank you very much. Thank you sir so much. Thank you Sundar. Thanks Chiranjeet. Thank you. Thank you everyone. Thank you everyone. Thank you.